inadequate funding, inadequate human resources, inadequate utilization. And therefore, most of the people have been resorting to secondary and tertiary healthcare, even for their very basic illnesses and even for their very basic ailments. Now, what has happened because of that? That private sector has flourished. For the service delivery, private sector has flourished. Private sector has filled the gap. Private sector has found the space to start its business and to offer those services which people were looking for at the primary healthcare level or at the first level care. But how the private sector is operating, that is the important point to understand. Private sector is operating by and large for profit. And when private sector operates for profit, this means that for most of the people and a large segment of population, this quality healthcare or this trustworthy healthcare that they are looking for, it becomes inaccessible and it becomes unaffordable for many, especially when there are no social protection strategies available, especially when there is no safeguarding mechanism available, especially when it is all about out-of-pocket expenditure. So for many, this health service delivery becomes inaccessible and unaffordable. सो हेल्थ सिस्टम रिसर्चर जब देखेगा किसी हेल्थ सर्विस डिलीवरी को और उसके अंदर रिसर्च करेगा तो वो क्या देखेगा? Let's define this. When you go for a health service research or a health systems lens के साथ आप health services को देखने जाएंगे तो what will you look for? You will look for the needs कि यहाँ की needs हैं क्या? First of all, what are the needs of the population? What are the health needs of the population which is being served by this particular service delivery outlet? What is the basket of service available? How do we define basket of service? डिफाइन ऐसे करते हैं कि हर लेवल ऑफ केयर के लिए, वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, उसके लिए एक मिनिमम पैकेज ऑफ जिसको असेंशियल हेल्थ सर्विसेज कहते हैं वो डिफाइंड है. In our context of Pakistan, essential health service package is defined for a dispensary or an MNCH center. Essential health service package is designed for a basic health unit. Essential health service package is marked for RHC, THQ as well as DHQ. ये सारे पैकेजेस जो है ये है. तो आपने उसको यूज करते हुए आपने देखना है कि इफ दिस इज द स्टैंडर्ड essential package of services which is to be provided from this particular level of healthcare facility vis-a-vis कि आपको उस वक्त ऑन ग्राउंड क्या मिलता है, ये ऑन ग्राउंड क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं. आइडियली इनको ये देना चाहिए ऑन ग्राउंड, ये सर्विसेज में ये चीजें दे रहे हैं. एंड दिस इज हाउ यू ascertain or this is how you assess the basket of services provided from a particular healthcare delivery outlet. द सेकेंड, तो फर्स्ट हो गया नीड्स, वहाँ की कम्युनिटी हेल्थ नीड्स क्या है. आप इसको बर्डन ऑफ डिजीज भी कह सकते हैं एपिडेमियोलॉजिकल लैंग्वेज में. आप इसको मोस्ट प्रेवलेंट इलनेसेस कह सकते हैं. देर आर वेरी मैनी मीन्स ऑफ identifying the needs of the population or what exactly is to be defined in terms of service provision from that particular outlet. The third, so need हो गया, basket हो गई. Third thing is operations. How does this healthcare facility operate? तो एक हेल्थ सिस्टम रिसर्चर ये देखेगा कि क्या ये लिमिटेड आवर्स के लिए इसके ऑपरेशंस हैं या ये 24/7 ऑपरेशंस हैं. और अगर लिमिटेड आवर्स के लिए ऑपरेशंस हैं तो क्यों लिमिटेड आवर्स के लिए ऑपरेशन है? व्हाई कांट दिस बिकम अ 24/7 healthcare facility? And if it is 24/7 healthcare facility already, so what are its some of the needs that still needs to be fulfilled ताकि ये fully functional हो सके. So इसके operations को देखेगा. मोड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को भी देखेगा कि इस सर्विस आउटलेट से हेल्थ सर्विसेज कौन से मोड से दी जा रही हैं. इन पेशेंट दी जा रही हैं, आउट पेशेंट दी जा रही हैं,
आउटरीच दी जा रही हैं या स्टैटिक फैसिलिटी में दी जा रही हैं। कोई सर्विसेज ऐसी भी हैं जो मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शक्ल में दी जा रही हैं। बहुत सारी इंस्टेंसेस में ये भी देखा गया है कि कुछ सर्विसेज आउटरीच में दी जाती हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टैटिक फैसिलिटी। what has been the performance of this particular healthcare facility, which means कि इसके आप परफॉर्मेंस के डिफरेंट पैरामीटर्स देख सकते हैं, यूटिलाइजेशन रेट्स देख सकते हैं, पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट्स देख सकते हैं, इसकी नंबर ऑफ सर्विसेज देख सकते हैं आप, वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। और मुख्तलिफ पैरामीटर्स को यूज़ करके आप इसका स्टाफ एब्सेंटिज्म चेक कर सकते हैं, स्टाफ की अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। सो मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो हैं वो यूज़ करके हम देख सकते हैं कि ये हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसा परफॉर्म करती रही है पिछले 6 महीने में या 1 साल में। The last but not the least and a very important thing a health system researcher would look at the health service facility कि इससे जो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जो लोग पॉपुलेशन जो इससे सर्व कर रहे हैं जिसको ये, उसके हेल्थ आउटकम्स क्या निकल रहे हैं। मतलब ये है कि जो इसकी फैसिलिटी की पॉपुलेशन, जो इसकी कैचमेंट पॉपुलेशन है, उसमें हम जाके हम इसका हम मुख्तलिफ हेल्थ आउटकम्स को मैयर करते हैं, जिसमें मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी आउटकम्स देख सकते हैं, इम्यूनाइजेशन कवरेज देख सकते हैं, फैमिली प्लानिंग देख सकते हैं। और नंदलेस हम इसका इम्पैक्ट भी देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में फॉर इंस्टेंस यहाँ पर ये हेल्थ फैसिलिटी कायम हुई थी जब से लेके अब तक इम्पैक्ट क्या आया है, इसने क्या कंट्रीब्यूट किया है। अब इसने अपनी कैचमेंट पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस में, इसने अपनी कैचमेंट पॉपुलेशन के हेल्थ आउटकम्स में, और इसकी अपनी कैचमेंट पॉपुलेशन के अंदर इंडिकेटर्स इंप्रूव करने में क्या इसने इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया है सिंस द टाइम दिस वाज एस्टेब्लिश्ड। और पिछले 3 साल में और 5 साल में, वट एवर टाइम फ्रेम रिसर्चर उस वक्त जो काम कर रहा होगा जिस टाइम फ्रेम पर, उस टाइम फ्रेम में वो उसका इम्पैक्ट भी देखेगा। सो हेल्थ सर्विसेज रिसर्च करने वाला रिसर्चर नीड्स देखेगा, बास्केट ऑफ सर्विसेज देखेगा, ऑपरेशन मोडालिटीज देखेगा, मोड्स ऑफ डिलीवरी देखेगा, पास्ट परफॉर्मेंस देखेगा, और उस पॉपुलेशन जो कि उससे मुस्तफीद हो रही है उसके अंदर हेल्थ आउटकम्स और इम्पैक्ट्स देखेगा। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है हेल्थ सिस्टम रिसर्चर के लिए, वो ऑफ कोर्स उस हेल्थ सर्विसेज के कुछ कंपोनेंट्स हैं वो देखना ज़रूरी है। जैसे कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं, हाउ दीज हेल्थ सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज्ड। आप जिस पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं उस पॉपुलेशन को आप सर्विसेज कैसे पहुंचा रहे हैं। उस पॉपुलेशन में डिफरेंट लोग आ रहे हैं, आप एक हॉस्पिटल में बैठे हैं, उस हॉस्पिटल में कुछ लोग आते हैं आपसे सर्विसेज लेने हु आर एम्प्लॉयड फॉर एग्जांपल, जिनकी जिनका एम्प्लॉयर उनके लिए पे करता है हेल्थ सर्विसेज के लिए। सम पॉपुलेशन इज हैविंग इंश्योरेंस, सम पॉपुलेशन इज हैविंग फॉर इंस्टेंस कोई उनके पास हेल्थ से रिलेटेड सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अवेल कर रहे हैं वो। सो क्या वो हेल्थ सर्विसेज उसको केटर कर रही हैं। फिर क्या वो हेल्थ सर्विसेज सिर्फ फैसिलिटी बेस्ड हेल्थ सर्विसेज है, या वो आउटरीच भी जा रही है, या वो एम्बुलेटरी केयर भी प्रोवाइड कर रही हैं। सो ये हेल्थ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने की चीजें होती हैं। सेकेंड इज हु आर द प्रोवाइडर्स ऑफ दीज हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ सिस्टम रिसर्चर ये भी देखता है जाके कि सर्विसेज प्रोवाइड कौन कर रहे हैं यहाँ पर। क्या सिर्फ फिजिशियंस हैं, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, कोई असिस्टेंट्स हैं, मिडवाइफ्स हैं, ऑक्सिलरी स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, एडमिन स्टाफ है। ये तमाम चीज़ें हेल्थ सिस्टम रिसर्चर देखता है जो कि इसके पैराफर्नेलिया में आती हैं। और हर लेवल की हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है उसकी अपनी स्टाफिंग एक होती है, और क्या वो अपनी स्टाफिंग नीड्स को मीट कर रहा है। क्योंकि जितना वो अपनी स्टाफिंग नीड्स को मीट करेगा उतना एफिशिएंटली वो परफॉर्म कर सकेगी हेल्थ सर्विस, और उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से वो सर्विस डिलीवरी कर सकेगी। फिर हेल्थ सिस्टम रिसर्चर देखता है कि वहाँ पर टाइप्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज क्या है, विच मीन्स के ये जो हेल्थ केयर आउटलेट है, ये जो हॉस्पिटल है, ये जो फैसिलिटी है, क्या ये प्रिवेंटिव सर्विसेज भी दे रही है क्यूरेटिव के साथ साथ। और
इसकी सर्विस बास्केट जो है क्या वो प्राइमरी के बराबर है या सेकेंडरी के बराबर है या टर्शरी के बराबर है? क्या ये सर्विस डिलीवरी होम केयर प्रोवाइड कर रही है? क्या ये सर्विसेज स्कूलों में कवर कर रहे हैं? क्या ये सर्विस हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. The next would be role of government. What is the हेल्थ सर्विसेज को जो हम जिनको हम स्टडी कर रहे हैं जिस स्ट्रक्चर्स को, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? अगर तो वो पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट की अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी है तो जाहिर है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इट्स अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर फैसिलिटी. तो उसकी जो भी हेल्थ सर्विस डिलीवरी है वो एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो रही है. बट इफ इट्स अ प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी और हेल्थ सिस्टम रिसर्च उसमें हो रही कर रहा है जाके हेल्थ सिस्टम रिसर्चर, तो वो फिर ये देखेगा कि एज पर द लेड डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स हैं या जो असेंशियल हेल्थ सर्विसेज पैकेज की हमने बात की है, क्या ये हेल्थ केयर फैसिलिटी अगर वो प्राइवेट है तो क्या उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है? फिर ये कि अगर वो प्राइवेट है तो क्या गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर रही है, उसकी क्वालिटी को, उसकी प्राइसिंग को, उसकी रेंज ऑफ सर्विसेज को, उसके स्टैंडर्ड्स को, क्या उसको रेगुलेट किया जा रहा है? फाइनेंसिंग कौन कर रहा है इन सर्विसेज की? गवर्नमेंट की फैसिलिटी है तो वी ऑल अंडरस्टैंड उसकी गवर्नमेंट फाइनेंसिंग होती है, सरकार से पैसे आते हैं उसके. लेकिन अगर वो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी है, उसकी फाइनेंसिंग कैसे हो रही है? उसको बजट कहाँ से मिलता है? उसको पैसे कहाँ से आते हैं हेल्थ सर्विसेज ऑफर करने के लिए? इसी तरह हेल्थ सिस्टम रिसर्चर जो है वो ये भी देखता है कि जो भी यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज दी जा रही हैं और इसके जो यूजर्स हैं, अगर वो पब्लिक सेक्टर की है या प्राइवेट सेक्टर की है, दोनों केसेस को अपने सामने रखें. एट द एंड ऑफ द डे इसका जो यूजर है हेल्थ केयर सर्विसेज का, व्हाट ही और शी इज स्पेंडिंग आउट ऑफ पॉकेट, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसके पास कोई इंश्योरेंस है या नहीं है, और या वो अपने किसी एम्प्लॉयर की तरफ से वो कवर्ड है या नहीं कवर्ड है. लेकिन अगर उसका कुछ जेब से खर्चा हो रहा है तो हेल्थ सिस्टम रिसर्चर उसको भी अकाउंट फॉर करेगा. और क्या इसकी कोई और एक्स्ट्रा म्यूरल फंडिंग या कोई डोनर फाइनेंसिंग भी आ रही है जो कि इस हेल्थ केयर फैसिलिटी को मिल रही है और जिसकी वजह से हेल्थ सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं? बहुत बहुत सारी ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं जहाँ से बेशतर सर्विसेज तो गवर्नमेंट की अपने फंडिंग से ऑफर की जाती हैं, या अगर प्राइवेट वो आपसे फीस लेते हैं और वो अपना रेवेन्यू. लेकिन कुछ सर्विसेज होती हैं जो डोनर के पैसों से ऑफर की जा रही होती हैं या डोनर फंडेड सर्विसेज होती हैं, तो उनको भी देखना जरूरी है. फिर हेल्थ सिस्टम रिसर्चर हेल्थ सर्विसेज को देखते हुए ये भी स्टडी करेगा कि सम अदर क्रिटिकल इश्यूज, फॉर इंस्टेंस मेडिकल एथिक्स का कितना ख्याल रखा जा रहा है हेल्थ सर्विस प्रोविजन के अंदर, क्वालिटी ऑफ केयर का कितना ख्याल रखा जा रहा है, जो मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पर. एंड व्हेन आई से मार्जिनलाइज्ड इट कवर्स ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं होते समटाइम्स, इंक्लूडिंग द मोस्ट पुअर एंड द वल्नरेबल. वो ये भी देखेगा कि इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर आलमाटा डिक्लेरेशन का बड़ा एक अहम पिलर था, वो किस हद तक यहाँ पर ऑपरेशनल है और फंक्शनल है, और दूसरे कौन से सेक्टर्स हैं जो इस हेल्थ केयर फैसिलिटी को ऑपरेशनल बनाने में और ऑपरेशनल रखने में और फंक्शनल रखने में मददगार साबित हो रहे हैं. वो एक्सेस को भी देखेगा कि इस हेल्थ केयर फैसिलिटी यहाँ पर एस्टेब्लिश तो हो गई है, लेकिन इसकी एक्सेस कैसे है, लोग यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं? पैदल चल के पहुँचते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अवेलेबल है उसको लेके पहुँचते हैं, रोड एक्सेस है या नहीं है, वगैरह वगैरह. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये देखनी ज़रूरी होती हैं वेन एवर यू गो टू डू फील्ड रिसर्च और ऑपरेशनल रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर हेल्थ सर्विस मॉडल, वो पब्लिक सेक्टर का हो या वो प्राइवेट सेक्टर का हो. अब देखना ये है कि ये हेल्थ सर्विसेज रिसर्च क्यों ज़रूरी है, क्यों आज हमने ये टॉपिक चूज किया है बात करने के लिए हेल्थ सिस्टम एडवांस हेल्थ सिस्टम रिसर्च के कोर्स के अंदर. ये टॉपिक हमने इसलिए इंक्लूड किया है हेल्थ सर्विसेज रिसर्च का
कि डेवलपिंग कंट्रीज को लेके, जो कि आपको पता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, हेल्थ सर्विसेज जो है उनको सिस्टम्स एंगल से देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कि देर इज़ अ होस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज विच आर अफेक्टिंग द सर्विस डिलीवरी। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज ऑफ कोर्स रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। और एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, दूसरा उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ इनएफिशिएंसी भी होता है। एक तो वैसे ही बजट बहुत कम एलोकेट किया जाता है हेल्थ सेक्टर को, फिर उस हेल्थ सेक्टर के बजट को जो एलोकेट किया जाता है उसकी जो तकसीम होती है नीचे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, वो बड़ी इनएक्विटेबल है। इनएक्विटेबल का मतलब ये है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम या प्राइमरी हेल्थ सिस्टम या हेल्थ केयर सर्विसेज, जहां पर आपकी 85% पॉपुलेशन का इलाज मुआवजा हो जाना चाहिए और उसकी गेट कीपिंग हो जानी चाहिए और उनकी बीमारियां वहीं ट्रीट हो जानी चाहिए, उसको मिलता है सबसे कम बजट। मेरा ख्याल है अराउंड 15% उसको जाता है। और 85% जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी को चला जाता है, जहां पर हार्डली 15% बीमार ऐसे हैं जिनको इलाज मुआवजे की जरूरत होती है सेकेंडरी और टर्शरी केयर लेवल पर। तो ये एक उल्टा हुआ है ट्रायंगल, एक मैकेनिज्म उल्टा हुआ है, जस्ट बिकॉज आपने प्राइमरी हेल्थ केयर को बहुत सालों तक चूंकि तवज्जो नहीं दी, लोगों का एतमाद उठ गया प्राइमरी हेल्थ केयर से, और पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल केयर, एंड in return they have now justification that look, we have so many patients, therefore we need so much budget. बट दिस हैविंग सेड दैट, ये आपका जो ओवरऑल एलोकेशन है रिसोर्सेज का, वो काफ़ी लिमिटेड है और हिस्टोरिकली लिमिटेड रहा है फॉर हेल्थ सेक्टर। और उसमें से भी एक बड़ा चंक जो है वो कंज्यूम होता है सैलरीज में और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में। और जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है और जो आपका जो एक्चुअली मेडिकल सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी कम है। और फिर इट इज बैडली मैनेज्ड एंड इट इज देर इज नो stringent monitoring system जो इसको देखे। And I'm talking about by and large for most of the developing countries. I'm not talking about Pakistan only. It's this is not a classical example, but overall developing countries globally face this kind of issue of resource scarcity and inefficient use of resources and inequitable distribution of resources within the health sector. तो इसलिए भी हमें हेल्थ सर्विसेज को हेल्थ सिस्टम्स के एंगल से देखना जरूरी है। दूसरी चीज, क्यों हमने हेल्थ सर्विसेज को देखना है? बिकॉज एक्सेस जो है वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा इसको स्टडी किया गया है और बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है कि अगर हम जैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात कर रहे हैं, अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो एजेंडा है, हम उसके सिग्नेटरी हैं, पूरी दुनिया ने साइन किया उसको। 2030 तक हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करनी है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के 3 मेन पिलर्स हैं, उसमें एक पिलर जो है वो एक्सेस का है। तो जब तक आप सारी पॉपुलेशन आपकी जो है टाइमली फैशन में और अप्रोप्रिएट तरीके से हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाएगी, हेल्थ केयर सर्विसेज दैट दे नीड, वो आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो एजेंडा है वो एक ख्वाब ही रह जाएगा। और इसके अंदर सबसे जो अहम नुकात हैं देखने वाले, इसमें जो सबसे अहम बैरियर्स हैं देखने वाले, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज पॉवर्टी। लोग गुर्बत की वजह से हेल्थ केयर को एक्सेस नहीं कर पाते। इट्स नॉट ओनली कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं इलाज मुआवजे के लिए, इवन पब्लिक सेक्टर में जाने के लिए भी गुर्बत जो है वो उनके आड़े आती है और लोग नहीं जा सकते। Geographic location is another factor. There are communities and groups of people and population who are very remote और बहुत फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, और उनकी जो रसाई है, उनकी जो एक्सेस है टू द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, वो काफ़ी दुश्वार होती है। इसी तरह जेंडर एक और फैक्टर है जो कि एक्सेस में आड़े आता है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी जाना। मैंने पिछली दफ़ा भी एक दो दफ़ा इस पॉइंट का जिक्र किया है कि सोशल मोबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक औरत जो है उसके पास कितनी आज़ादी है अकेले चल के अस्पताल जाने की, और या अपने अपने लिए खुद फैसला करने की,
या इवन अपने बच्चे की सेहत के लिए खुद फैसला करने की, या अपनी सेहत के ऊपर पैसे खर्च करने की, तो वो सारी चीजें एक्सेस की डिफरेंट डायमेंशंस बन के सामने आ जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन द ओवरऑल सिनेरियो सोसाइटी में, ऑफ कोर्स दैट आल्सो लिंक्स इन इनडायरेक्टली विद द पॉवर्टी, बट अनएम्प्लॉयमेंट जब हो जाती है, बहुत सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट की वजह से उनको हेल्थ की सहूलत मिली होती है, और उनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको हेल्थ की कवरेज दे रही होती है। तो बहुत सारे लोग जब बेरोजगार हो जाते हैं तो उनकी एक्सेस टू हेल्थ केयर अफेक्ट होती है। फिर एक्सेस के अंदर एक और चीज भी आती है कि चलें ठीक है, पॉवर्टी भी नहीं है, लोकेशन भी इशू नहीं है, जेंडर भी इशू नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं है, बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं होती जो लोगों को नीड है, और people are looking for those services but they don't find those services in the nearby facility. So for that they have to look for other options available. या तो उनको दूर दराज चल के सफर करके बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है, या फिर उनको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है। तो कहना का मकसद ये है कि एक्सेस को फैसिलिटेट सिस्टम नहीं कर रहा, जो रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं उनका ना होना भी एक्सेस का ऊपर इफेक्ट करता है। फिर आपकी एक्सेस के अंदर एक पुअर मैनेजमेंट भी आ जाती है। आपके पास स्टाफ है, आपके पास वसाइल है, आपके पास रिसोर्सेज है, बट आप उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हेल्थ सर्विसेज आपकी ऑफर नहीं, सर्टन हेल्थ सर्विसेज आप नहीं ऑफर कर पा रहे, और लोगों को दर बदर जाना पड़ता है वो हेल्थ सर्विसेज लेने के लिए। तो वो भी एक एक्सेस के, इस एक्सेस के एलिमेंट को लेकर कि तमाम एंगल्स के साथ देखना चाहिए कि अ पर्टिकुलर हेल्थ केयर सर्विस कितनी एक्सेसिबल है इस पॉपुलेशन के लिए जिसको वो सर्व कर रही है। The third thing, which is very much quoted in the literature of health service research in the context of developing countries, is the services are not responsive to what people want. Uh, People want quality services, but the services available in the healthcare facility they are using are perceived as of poor quality or unacceptable quality. Also, the attitude of the staff in the healthcare facility is not acceptable sometimes. तो वो लोगों को भी उनका जो है रुझान उनकी ट्रस्ट को शेक करता है, एंड देन पीपल डोंट वांट टू गो टू दोस हेल्थ सर्विस आउटलेट्स और हॉस्पिटल्स बिकॉज वहाँ का स्टाफ उनके साथ सही तरीके से पेश नहीं आता। वाइस वर्सा, अगर आप स्टाफ की तरफ चले जाए तो स्टाफ से पूछेंगे तो स्टाफ इज डीमोटिवेटेड, staff is disincentivized, staff is ill-equipped with the latest knowledge or the skill set that is required for service delivery. उनकी कोई इन सर्विस ट्रेनिंग, कोई कंटिन्यूइंग एजुकेशन का कोई मौसर निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसा तरीके से अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रहे होते, और वो मोस्टली आपको डीमोटिवेटेड स्टाफ मिलेगा, खास तौर पे पब्लिक सेक्टर में, वो प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी हो, या टर्शरी केयर लेवल हो। इसी तरह जो दूसरी साइड है प्राइवेट सेक्टर की, जो कि बाय एंड लार्ज फॉर प्रॉफिट के लिए ऑपरेट कर रहा है, लोगों से फीस लेता है, सर्विसेज देता है, वहां पर नजर क्या आता है कि वहां पर नॉन रिस्पॉन्सिवनेस कैसे आती है? वहां पर नॉन रिस्पॉन्सिवनेस ऐसे आती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल फील बीइंग एक्सप्लॉइटेड, feel being exploited because of unnecessary and irrational prescription of drugs, unnecessary diagnostic tests, unnecessary hospital admissions, and unnecessarily conducted procedures. And people feel that we are being exploited चूंकि हम अब कहीं और जा नहीं सकते, पब्लिक सेक्टर में, सरकार में हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, या ट्रस्टवर्थी नहीं है, या क्वालिटी की नहीं है, या अच्छी नहीं है, या रात के टाइम पर मिलती नहीं है, हमें प्राइवेट सेक्टर में आना पड़ता है, ये हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। और, और इसलिए उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो जब हेल्थ सिस्टम रिसर्चर हेल्थ सर्विसेज की ऑर्गेनाइजेशन को देखता है तो वो इन तमाम एलिमेंट्स को भी देखता है कि इसके रिसोर्सेज कैसे हैं, और कितने एफिशिएंटली रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, इसकी एक्सेस किस किस मेयार की है, किस लेवल की एक्सेस है, और इसकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है। सो रिसोर्सेज, एक्सेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस आर थ्री डायमेंशंस दैट
are commonly health system researcher would see while conducting a health service research in the context of developing countries. फिर हमें एक चीज ये भी देखनी है कि सर्विस डिलीवरी सिस्टम जो डेवलपिंग कंट्रीज का है उसके अंदर कुछ बड़ी क्रॉनिक वीकनेसेस हैं, बड़ी लॉन्ग ड्यू वीकनेसेस हैं जो कि एड्रेस समहाउ नहीं हो पाती। एक तो मैंने अभी आपसे जिक्र किया, बड़ा कॉमन फीचर नजर आता है अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज का लिटरेचर पढ़ें, अफ्रीका का, लैटिन अमेरिका का, साउथ एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का, ये सारा डेवलपिंग कंट्रीज का मैंने जिक्र किया है। इनके अंदर आप लिटरेचर उठा के पढ़े तो आपको मिलेगा वीक एंड डीमोरलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स। वीक का मतलब है कि उनकी जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो वीक है, उनका जो स्किल सेट है वो वीक है, उनका जो नॉलेज बेस है वो वीक है, और उनकी कोई कंटिन्यूइंग एजुकेशन नहीं होती, उनकी कोई इन सर्विस ट्रेनिंग नहीं होती, वो मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट ने कोई बजट एलोकेट नहीं किया होता इसके लिए। देयरफॉर उनकी कोई ऑनगोइंग ग्रूमिंग नहीं हो रही होती, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, और एज अ रिजल्ट most of the time they are demoralized because of their service structure, because of their salary structure, because of their supervisory structure. मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन रिसोर्सेज जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग, वो डिमोरलाइज्ड मिलते हैं हमें। फिर हमने सर्विस के अंदर एक और चीज भी देखनी है, ऊपर रहता है, वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, और ये बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन सेटअप के अंदर। थर्ड थिंग इज अर्बन बायस। अगर हेल्थ केयर के एस्टेब्लिशमेंट्स बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स बन रहे हैं, तो वो नज़र आता है कि बड़े बड़े शहरों में उनको बनाया जाता है, जबकि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 65-35 है, विच मीन 65 इज रूरल हैबिटेंट्स एंड 35 आर अर्बन हैबिटेंट्स। लेकिन ये इवन देन उसका जो बायस है, उसकी जो प्रोपेंसिटी है वो नजर हमें आती है अर्बन साइड के ऊपर। और इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स की भी जो डेप्लॉयमेंट है उसके अंदर भी हमें स्क्यूड ट्रेंड्स नजर आते हैं। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इन द हेल्थ सेक्टर वुड लाइक टू वर्क इन द अर्बन सेक्टर, एंड उनकी जो डेप्लॉयमेंट है वो अर्बन सेक्टर के अर्बन सेंटर्स के अंदर हमें नजर आती है। फिर जो प्राइवेट सेक्टर है वो बाय एंड लार्ज अनरेगुलेटेड है। आपका जो रेफरल सिस्टम है वो कोई स्ट्रक्चर्ड है नहीं, विद इन द पब्लिक सेक्टर भी, और पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर भी, और प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर भी, तीनों लेवल्स के ऊपर जो रेफरल सिस्टम है इट इज पुअरली स्ट्रक्चर्ड, बल्कि ना होने के बराबर स्ट्रक्चर है ही नहीं उसका, कोई जो है कोई फॉर्मल रेफरल सिस्टम या मैकेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता कि अगर आपने बीएचयू से किसी को आरएचसी में रेफर करना है और रूरल हेल्थ सेंटर से किसी को आपने तालुका या तहसील हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रेफर करना है, व्हाट इज द सिस्टम? You will hardly find any structural referral mechanism. किसी को पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट में शिफ्ट करना है या किसी को प्राइवेट से पब्लिक में शिफ्ट करना है, कुछ स्ट्रक्चर्ड रेफरल मैकेनिज्म आपको नजर नहीं आता, जिसकी वजह से many patients are lost on the way, many patients are वो चले जाते हैं दूसरे किस्म के इलाज मुआवजों की तरफ, और they end up spending huge amounts of money and they end up with loads of complications as a result. फिर जो हमने बात की सर्विस डिलीवरी सिस्टम बनाए आप उसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, हमें नज़र आता है कि जब भी कोई अस्पताल बनाया जाता है, कोई डिस्पेंसरी, कोई एमएनसीएच सेंटर या कोई हेल्थ का प्रोग्राम, उसमें कम्युनिटी की इनपुट जो है, मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत कम नज़र आती है। कभी नहीं देखा कि कम्युनिटी से इनपुट ली गई हो, कम्युनिटी क्या चाहती है, कम्युनिटी की क्या हेल्थ नीड्स हैं, कम्युनिटी की क्या वॉइसेस हैं, कम्युनिटी की क्या हेल्थ प्रायोरिटीज़ हैं, कम्युनिटी कैसे कम्युनिटी को उस हेल्थ फैसिलिटी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करें। एक्चुअल स्पिरिट तो आलमा आटा की ये थी कि उस प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी को जो मैनेज करने की कमेटी बनाई जाए उसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए, और वहां से एक कम्युनिटी गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट भी शुरू हुआ था। बहुत सारे ममालिक में देखने को मिलते हैं, अगर आप गूगल करें कम्युनिटी गवर्नेंस प्राइमरी हेल्थ केयर, तो आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी कि हाउ कम्युनिटी हैज बीन इन्वॉल्व
in actually managing the healthcare facility. फिर जो दूसरे डिटर्मिनेंट्स हैं हेल्थ के, हमने पिछले सेशन में भी बात की, सोशल डिटर्मिनेंट्स की, और उससे पिछली भी बात की हमने कौन से दूसरे सेक्टर्स हैं जिनको कंट्रीब्यूट करना होता है, जो किसी भी सर्विस डिलीवरी सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो तमाम सेक्टर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो तमाम सेक्टर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दूसरे सेक्टर्स की, हेल्थ सेक्टर के साथ कितनी कोलैबोरेशन है, ये मिलकर कितना काम कर रहे हैं, मसाइल को हल कर रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड मसाइल को हल करने के लिए। एजुकेशन सेक्टर क्या कर रहा है, फूड सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हैं, रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, लॉ एंड ऑर्डर वाले हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है। देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स हु हैव अ रोल टू प्ले to make a health service functional, operational at its optimal level. एक स्टॉक टेकिंग हम अगर करें, अब जनरल डिस्कशन से थोड़ी सी नैरो डाउन डिस्कशन करें, एंड वी कम टू पाकिस्तान। सो हेल्थ सर्विस रिसर्च को लेके अगर हमने पाकिस्तान में देखना है तो व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी शुड नोट। And to begin with, you have to bear in mind that first of all, the resources which are allocated to health sector of Pakistan are very very meager resources. और वो जीडीपी का कितना फीसद है ये आपको भी पता है, आप गूगल करके भी देख सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान में हेल्थ को ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली जीडीपी का कितना फीसद दिया जाता रहा है, उसमें से कितना कंज्यूम हो गया है, होता रहा है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में, सैलरीज में और दूसरे रिकरेंट एक्सपेंडिचर्स में, और कितना एक्चुअली हेल्थ सर्विस प्रोविजन के लिए बचता रहा है, और वो जो बचता भी रहा है उसको कितना एफिशिएंटली सिस्टम जो है वो यूटिलाइज करता रहा है फॉर क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी। इसी तरह हम देखने ये भी देखने में आया है कि गवर्नमेंट्स हैव बीन अनएबल टू रिस्पॉन्ड to new demands of the medical care, to the new demands of the medical science, जिसकी आपको ग्रोथ नजर आती है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं वो फैसिलिटीज, वो एम्यूनिटीज, वो डायग्नोस्टिक्स, वो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज इंट्रोड्यूस नहीं कर सके अपने सिस्टम में, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में लोग फिर जाना शुरू हो जाते हैं और वो सर्विसेज अवेलेबल ही वहां पर है। मैं जरा कुछ लोगों को एडमिट कर लूं, ये देर से आने वाले परिंदे। देयरफॉर व्हाट हैपेंस, जब आपका पब्लिक सेक्टर एट पार नहीं रहता मेडिकल एडवांसमेंट्स के साथ, मेडिकल के अंदर शोबे में जो प्रोग्रेस हो रही है, तो इट बिकम्स अंडर यूटिलाइज्ड। लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाएंगे, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है पब्लिक सेक्टर से, और प्राइवेट सेक्टर को रूम मिल जाता है, प्राइवेट सेक्टर को स्पेस मिल जाती है अपनी रैपिड ग्रोथ के लिए, एंड प्राइवेट सेक्टर विल ऑपरेट बाय द एंड ऑफ द डे फॉर प्रॉफिट। जब वो फॉर प्रॉफिट के लिए ऑपरेट करता है प्राइवेट सेक्टर, देयर विल बी मासिव इंक्रीज इन 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 द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉमन मैन ऑन हेल्थ केयर। तो अगर आपने, हम अब एक एग्जांपल लेते हैं, आपने हेल्थ सर्विसेज को देखना है, आपने रिसर्च करनी है फॉर इंस्टेंस कि हेल्थ सर्विसेज जो हैं कितनी वेल पोजीशनड हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की ट्रीटमेंट चाहिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की डायग्नोसिस चाहिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए ऑफ कोर्स फैसिलिटीज चाहिए उनको ट्रीट करने के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की स्क्रीनिंग के लिए फैसिलिटीज चाहिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के कंट्रोल के लिए प्रोग्राम्स चाहिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए हमें कंट्रोल करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। सो हेल्थ सर्विस रिसर्चर क्या देखेगा, जो कि एक होलिस्टिक व्यू देखना चाहेगा कि हेल्थ सर्विसेज कितनी
किस पोजीशन में है और किस स्टेट में है टू एक्चुअली control non-communicable diseases or to diagnose and prevent and treat and cure and limit non-communicable diseases in a particular population. तो हेल्थ सर्विस रिसर्चर इनपुट्स से देखना शुरू करेगा और इनपुट्स के बाद वो प्रोसेसेस को देखेगा, आउटपुट्स को देखेगा, आउटकम्स को भी देखेगा। इनपुट्स में क्या देखेगा हेल्थ सिस्टम रिसर्चर या हेल्थ सर्विस रिसर्चर? इनपुट्स वो देखेगा रिसोर्सेज को। इनपुट्स आप याद रखिए हमेशा रिसोर्सेज होती हैं आपकी, और इनपुट्स में जो तीन मेन रिसोर्सेज कॉमन, तीन 3 M's को याद रखा जाता है, जिसको कहते हैं मैन, मनी, मटेरियल। सो मैन, मनी, मटेरियल आर द इनपुट्स फॉर एनी प्लानिंग साइकिल। और उसमें आप देख सकते हैं कि हेल्थ सर्विसेज को लेकर पर्सनल, यानी कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को स्क्रीन करने के लिए स्किल्ड है और ट्रेंड है और कॉम्पिटेंट है। आपको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, आपको अपना बजट और बजटरी एलोकेशंस देखनी, और आपके पास वो इक्विपमेंट होना चाहिए जो कि आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक्स के लिए दरकार होगा। फिर आपने अपना प्रोसेस देखना है। नेक्स्ट इनपुट के बाद आता है प्रोसेस। किसी भी हेल्थ सर्विस में जिसको ये मैंडेट मिला हो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कंट्रोल करने का, हम उसके प्रोसेस को देखेंगे जाके। प्रोसेस को देखना यानी कि आपने उसकी एक्टिविटीज को देखना, आपने उसको देखना है। सबसे पहले आपने देखना है जो उसको फाइनेंसिस दिए गए थे, क्या उसने बजट एलोकेट किया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए? क्या उसने अपने स्पेशल क्लिनिक्स शेड्यूल किए हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए? और उसके ऑपरेशन आवर्स क्या हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के पेशेंट्स की स्क्रीनिंग के लिए, उनकी डायग्नोसिस के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनकी एडवाइस के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए, उनके रेफरल के लिए? तो ये तमाम चीजें हेल्थ सर्विस रिसर्चर देखेगा। आउटपुट में आप क्या देखेंगे? उसकी इमीडिएट परफॉर्मेंस क्या है। इमीडिएट परफॉर्मेंस में आप जाहिर है ये देखेंगे कि इस हेल्थ सर्विस ने, या इस हेल्थ सर्विस फैसिलिटी ने, या इस हेल्थ सर्विस आउटलेट ने कितने लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए स्क्रीन किया, कितने लोगों को ट्रीटमेंट दिया, कितने लोगों को काउंसलिंग दी, कितने लोगों को रेफर किया, कितने लोगों को एजुकेशन दी। दिस इज one level of performance. The other level of performance will be looking at the outcome level, कि आपकी इस हेल्थ सर्विसेज में इन इनपुट्स के साथ और इस प्रोसेस के साथ और इन आउटपुट्स के साथ आप क्या आउटकम्स जनरेट कर पाए हैं अपनी उस पॉपुलेशन में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को लेके। कितने लोग एक्चुअली जो है वो अब क्वालिटी ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का पेशेंट बनने से पहले ही वो स्क्रीन होके डायग्नोज होके वो डायबिटिक होने से बच गए हैं, कितने लोग हाइपरटेंसिव होने से बच गए हैं, कितने लोग जो हैं वो अर्ली डायग्नोज हो गए और बड़ी अर्ली स्टेजेस पे आपने उनको डायग्नोज करके आपने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। इस तरह के इंडिकेटर्स जो हैं वो उस हेल्थ सर्विसेज की आउटकम एफिशिएंसी बताएंगे, और उसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी यहाँ से भी हम देख सकते हैं। तो ये है एक मॉडल देखने का हेल्थ सर्विसेज को, अगर हेल्थ सर्विस रिसर्च आपने करनी है तो। एक और एंगल जो हेल्थ सर्विस रिसर्च को देखने का है और जो बड़ा अहम है, हेल्थ सर्विस रिसर्चर की जॉब यहाँ पर ख़त्म नहीं होती कि उसने सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर डिफरेंट चीज़ों को जाकर और एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स को देख लिए। हेल्थ सर्विस रिसर्चर ने हेल्थ सर्विसेज को असेस कुछ और पैरामीटर्स के ऊपर भी करना। फॉर इंस्टेंस हेल्थ सर्विस रिसर्चर जो है वो देखेगा 3 E's को। 3 E's में वो देखेगा एक्विटी को, एफिशिएंसी को और इफेक्टिवनेस को। सॉरी। अब एक्विटी को क्या कैसे देखेगा हेल्थ सर्विसेज को लेके? हेल्थ सर्विस रिसर्चर या हेल्थ सिस्टम्स रिसर्चर जो है वो एक्विटी को कैसे देखेगा? वो एक्विटी को ऐसे देखेगा कि ये है इनके पास, उसमें से उस डिनोमिनेटर को लेके एक्चुअली कितनी पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं, और उसमें से
कितने लोग जो हैं उस पॉपुलेशन में से इस हेल्थ सर्विस को एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर तो 100% एक्सेस कर पा रहे हैं और अगर तमाम लोग उस सर्विस को यूज कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि एक्विटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, एक्विटी के पैरामीटर्स जो है, दे आर बीइंग एड्रेस्ड, और वो हम meet कर रहे हैं अपने एक्विटी के पैरामीटर के। क्या एक्विटी में वो सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन जो कि पे नहीं कर सकते, और क्या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हेल्थ सर्विसेज को, वो किस तरह से मुस्तफीद हो रहे हैं और वो किस तरह से हेल्थ सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, वो इन सर्विसेज से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, खास तौर पे वो लोग जो पे नहीं कर सकते। अगर वो सरकारी अस्पताल है तो भी, और अगर प्राइवेट है तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज देख। दूसरी ई जो आती है, पहली तो एक्विटी हो गई, दूसरी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी में आपने दो चीजें देखनी। आपने देखनी है एलोकेशन, उसकी बजटरी एलोकेशन, और दूसरा उसकी एफिशिएंसी इन द एक्सपेंडिचर। जरूरी नहीं है कि एक हेल्थ केयर फैसिलिटी को, एक हेल्थ केयर सर्विस को जो बजट एलोकेट हुआ हो अपनी सर्विसेज को रन के लिए, वो उसको उतना ही एफिशिएंटली स्पेंड भी करते हैं। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स देखना जो है जरूरी होता है। पहली लेवल ऑफ एफिशिएंसी तो ये है कि वो अपनी सर्विसेज के लिए बजट को एलोकेट करें और अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम से कम करें। डिलीवरी के लिए उसको कितना एफिशिएंटली कन्वर्ट किया इनटू द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, या इनटू ट्रांसलेट किया इनटू एक्चुअल सर्विस डिलीवरी, वो एक सेकंड लेवल ऑफ एफिशिएंसी देखनी जरूरी है। और तीसरी चीज है इसमें इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस आती है आउटकम लेवल के ऊपर। तो आप देखेंगे कि जब एक्विटी एड्रेस हो गई है, जब एफिशिएंसी को उसने एड्रेस कर लिया है, तो अब कितनी इफेक्टिव वो सर्विसेज हैं, विच मींस के लोगों को जिसको वो सर्व कर रही है, पॉपुलेशन जिसको वो सर्व कर रही है, वहां पर हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वहां का हेल्थ स्टेटस क्या है, वहां की क्वालिटी ऑफ केयर से कितने लोग मुतमईन है, तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट्स क्या है वहां पर। तो हेल्थ सर्विस असेसमेंट में जहां आपने बहुत सारे एंगल्स को देखा, वहां पर आपने एक्विटी को भी देखना है, एफिशिएंसी को भी देखना है, और इफेक्टिवनेस को भी देखना है। आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय टॉक, सो डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एक चीज हमने और देखनी है, हेल्थ सिस्टम रिसर्चर ने, जब वो है, वो पब्लिक सेक्टर भी है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी है। पब्लिक सेक्टर जो है वो अपनी बास्केट ऑफ सर्विसेज के साथ ऑपरेट कर रहा है, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ प्राइवेट सेक्टर सर्व कर रहा है लोगों को। आपने देखने सारे सिनेरियो में रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, खास तौर पे एक्विटी और एफिशिएंसी को बैलेंस करने में, इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, in terms of financing of services, in terms of regulation, क्वालिटी और सेफ्टी को रेगुलेट करने में, और इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस फॉर द एंड कंज्यूमर। आपका पेशेंट जो है वो एंड कंज्यूमर है। तो एक अच्छी गुड गवर्नेंस और जो गवर्नमेंट चीजों को देखती है, अगर आपने किसी खास प्रोग्राम के लिए हेल्थ सर्विसेज, जो हमने कम्युनिकेबल डिजीज की फॉर इंस्टेंस एक मिसाल ली थी, उसके लिए अगर आपने एक सक्सेसफुली हेल्थ सर्विसेज को ऑपरेट करना है, तो आप इन चीज़ों को देखेंगे। हेल्थ सर्विसेज रिसर्च की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा क्यों होती जा रही है, और इसमें हेल्थ सिस्टम रिसर्चर का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्यों होता जा रहा है? बिकॉज 21st सेंचुरी में वी आर फेस्ड विद सर्टन चैलेंजेस जो कि डायरेक्टली हमारी हेल्थ सर्विस डिलीवरी को इफेक्ट कर रहे हैं, और हमारी हेल्थ सर्विस डिलीवरी को शेप अप करने में अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं? एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट 6 की चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय द हेल्थ सिस्टम, एंड स्पेशली एट द हेल्थ सर्विस डिलीवरी लेवल, और जिसकी जिसकी वजह से हमारी हेल्थ सर्विस स्ट्रक्चर, हेल्थ सर्विस डिलीवरी, हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। नंबर एक है disparities and inequities in accessing the healthcare.
not only within the countries but between the countries also. So there are disparities. Population groups के अंदर inequities देखने में आती हैं when it is to access healthcare because of different factors which we have already discussed in the previous lectures and previous talks. Then the next is increasing demand on the constrained resources. Resources limited है, resources constrained है, थोड़ी है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है. पॉपुलेशन ग्रो डेवलपिंग कंट्रीज में, और पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ उनकी हेल्थ केयर नीड्स भी ग्रो कर रही हैं, और उसके साथ जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है. तीसरा चैलेंज जो है वो, इसके ऊपर अब बात होनी शुरू हो गई है और कुछ सालों से इसके ऊपर थिंकिंग हो रही है कि गवर्नमेंट का रोल होना क्या चाहिए हेल्थ सेक्टर में. क्योंकि गवर्नमेंट को अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने मल्टीपल हैट्स पहने हुए हैं. गवर्नमेंट के पास पॉलिसी का हैट भी है, गवर्नमेंट के पास रेगुलेटर का हैट भी है, गवर्नमेंट के पास परचेजिंग का हैट भी है, गवर्नमेंट के पास सर्विस प्रोविजन का हैट भी है, गवर्नमेंट के पास पार्टनरशिप का हैट भी है. गवर्नमेंट का एक्चुअल रोल होना क्या चाहिए सर्विस प्रोविजन में? क्या सिर्फ रेगुलेटरी होना चाहिए? क्या सिर्फ पॉलिसी मेकिंग का होना चाहिए? क्या सिर्फ परचेजिंग का होना चाहिए? या एक्चुअल सर्विस प्रोविजन का भी होना चाहिए? तो ये देखना भी जरूरी है किसी भी मुल्क के सिस्टम के अंदर. गवर्नमेंट की डायनामिक्स को देखते हुए, गवर्नमेंट की पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए, सेक्टोरल डायनामिक्स को देखते हुए, मार्केट के डायनामिक्स को देखते हुए, what role actually government should keep with itself, and the rest of the roles should be delegated to other sectors, private sector or non-for-profit sector or other organizations. एक और चैलेंज जो बहुत अहम है और डेवलपिंग कंट्रीज को जो फेस करना पड़ रहा है वो है ग्रोथ ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, एंड कैपिटलिस्टिक नेचर ऑफ हेल्थ. यानी कि हेल्थ के अंदर प्राइवेटाइजेशन की तो समझ आती है, लेकिन हेल्थ के अंदर सरमायाकारी बहुत ज्यादा हो रही है, और वो सरमायाकारी इसीलिए हो रही है कि उससे मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो यील्ड किया जा सके एट द एंड ऑफ द डे. और ये पुअर कंट्रीज विद मॉडेस्ट जीडीपीज, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जिनके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और बीमारियां भी उसी हिसाब से ज़्यादा है, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत मुनाफाबख्श कारोबार बनता जा रहा है हेल्थ केयर को लेके. तो ये भी एक चैलेंज बहुत सीरियस फेस हो रहा है हेल्थ सर्विस डिलीवरी के अंदर. फिर आपकी नेक्स्ट जो है वो मेडिकल टेक्नोलॉजी. नई से नई मेडिकल टेक्नोलॉजी आती जा रही है, प्रोडक्ट्स आती जा रही हैं, नए से नए डायग्नोस्टिक टेस्ट्स आते जा रहे हैं, और वो ज़रूरी भी होते जा रहे हैं. किसी हद तक फिजिशियंस जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट भी होते जा रहे हैं. वो उसके बगैर डिसीजन नहीं लेते, उसके बगैर वो इलाज मुआवजा नहीं शुरू करते. लेकिन चूंकि वो फ्री दस्तयाब नहीं है, वो मरीज की जेब के ऊपर बोझ बन रहे हैं, वो मरीज आउट ऑफ पॉकेट स्पेंड कर रहा है उसके लिए. टेक्नोलॉजी चाहिए भी हमें, लेकिन वो फ्रीली दस्तयाब भी नहीं है, सब्सिडाइज्ड भी नहीं है. ये भी एक चैलेंज बनता जा रहा है सर्विस डिलीवरी में. फिर आपकी डिजीज पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, आपकी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, आपके क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम हेल्थ सर्विसेज जो है इनको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, इनको अपने आप को रेडीनेस अपनी बेहतर करनी पड़ेगी, अपनी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस बेहतर करनी पड़ेगी, अपनी स्किल सेट बेहतर करनी पड़ेगी, अपनी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस बेहतर करनी पड़ेगी, अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि नई नई बीमारियां आ रही हैं, नए इन्फेक्शन आ रहे हैं, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. पाकिस्तान की एग्जांपल अगर ले लें तो इसमें एडोलसेंट्स और यूथ का बल जिस वक्त मौजूद है, उसके लिए कोई डेडिकेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज एज सच सिस्टम में अवेलेबल नहीं है. जिन कंट्रीज के अंदर ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है वहाँ पर जेरियाट्रिक सर्विस अवेलेबल नहीं है. इसी तरह क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बहुत सारी
हम तब्दीलियां देख रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज देख रहे हैं जिसके लिए अभी हेल्थ सिस्टम हमारा प्रिपेयर्ड नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो आज हमने बात की हैं, ये एक कॉल देती हैं हेल्थ सर्विस रिसर्च के लिए, और हेल्थ सिस्टम रिसर्चर जो है वो वेल पोजीशनड है और वेल इक्विप्ड होता है किसी हेल्थ सर्विस की जाके असेसमेंट करने के लिए। अगर उसने हॉलिस्टिक असेसमेंट करनी है और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कौन सी हेल्थ सर्विसेज जो है वो ऑप्टिमली स्ट्रक्चर कैसे उनको किया जा सकता है, ऑपरेशनल कैसे किया जा सकता है, और परफॉर्म कैसे करवाया जा सकता है, सो दैट मैक्सिमम पॉपुलेशन कैन बेनिफिट फ्रॉम दोज हेल्थ सर्विसेज। So this was my today's talk, and I end here, and I will welcome you for any questions. Thank you. Any questions or any comments? कि सबको रोजा लगा हुआ है? मेरे अलावा सबको रोजा लगा हुआ है। हुजैफा, जोहा, इमरान एक्सक्यूज साहब तो तशरीफ ही अभी लाए हैं। इमरान साहब तो कहीं लगता है ट्रैफिक में फंसे हुए थे। जी नवीन, गो अहेड। सर आपसे एक चीज पूछनी थी जो हमने बात की थी कि जब प्रोसेसेस के बाद आउटपुट देखते हैं, आउटपुट और आउटकम के इंडिकेटर्स में सर क्या डिफरेंस, किस तरह हम असेस करेंगे कि ये हमारे आउटपुट के मतलब जैसे सर आपने एग्जांपल दे रहे थे नॉन वेरी वेरी कम्युनिकेबल डिजीज के जी, रेफरेंस वेरी से। वेरी गुड क्वेश्चन। आई अंडरस्टैंड। आउटपुट जो होता है ना, वो इमीडिएट होता है। आउटपुट इमीडिएट, सून आफ्टर द प्रोसेस एंड्स, तो उसके फौरन बाद जो रिजल्ट आता है उसको आउटपुट कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैंने आपको कहा कि आपका एक प्रोसेस है, आपने काउंसलिंग, कम्युनिकेबल डिजीज के, नॉन कम्युनिकेबल पेशेंट्स के लिए आपने काउंसलिंग क्लिनिक बना दी। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के पेशेंट्स की जब आपने काउंसलिंग कर दी, तो उसके फौरन बाद क्या होगा? द द नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट यू हैव काउंसल्ड, और जिनको आपने हेल्थ एजुकेशन दी है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वो जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, दैट विल बी द आउटपुट। ठीक है? या उनका फौरी तौर पे जो नॉलेज आपने इंप्रूव कर दिया है, दैट इज एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट। अगर आपने अपने हेल्थ सर्विसेज के अंदर अपने स्टाफ की ट्रेनिंग कर दी है नॉन कम्युनिकेबल पेशेंट्स की, डिजीजेस के पेशेंट्स की स्क्रीनिंग करने के लिए, तो जो नंबर ऑफ स्टाफ ट्रेंड होगा इन स्क्रीनिंग ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पेशेंट्स, दैट विल बी आउटपुट। आउटकम जो है ना, वो थोड़ी बात का रिजल्ट होता है। ठीक है? जैसे कि आप कहेंगे लेवल ऑफ अवेयरनेस इंप्रूव हो गई लोगों में, या आप कहेंगे कि लोगों ने अपने बिहेवियर्स को थोड़ा सा, रिस्की बिहेवियर्स को चेंज कर लिया बिकॉज ऑफ योर हेल्थ एजुकेशन सेशंस, वो एक आउटकम होगी। और इम्पैक्ट जो है वो मजीद लॉन्गर टर्म होता है, वो आउटकम के भी बाद आता है। आप कह सकते हैं नंबर ऑफ डेथ्स अवर्टेड बिकॉज ऑफ a certain non-communicable disease, that will be the impact in any population. I hope I'm clear, Naveen. जी सर, थैंक यू सो मच। सर मतलब अगर हम प्रेवलेंस भी किसी डिजीज की कम हो रही है तो वो भी हम ये इम्पैक्ट के अंदर ही लेंगे ना कि जी बिल्कुल ले सकते हैं। जब प्रेवलेंस कम हो रही है, उसको आप इम्पैक्ट के अंदर ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखें, इम्पैक्ट कभी भी 3 महीने, 6 महीने, साल में नहीं आता। एटलीस्ट 3 to 5 years जो है वो इम्पैक्ट की लाइफ होती है। सो इम्पैक्ट मेजरमेंट है, उसको की हद तक आप देख सकते हैं। लोगों के बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, लोगों की थैंक प्रैक्टिसेस यू चेंज सर। हो रही हैं, ये आप आउटकम तक देख सकते हैं। जी। एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? Was today's session interesting and beneficial for you? Was this talk यस सर। important with regard to health systems research? आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर नहीं है? नहीं है, जोहा शायद डॉक्टर नहीं है।
But anyways, I try to keep my language and discourse pretty simple, ताकि अगर कोई नॉन मेडिकल बैकग्राउंड में से है आप में से तो उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो. बट इफ आई एम नॉट ऑन योर वेवलेंथ तो प्लीज मुझे रोक दिया करें कि अगर मैं मुश्किल बात कर रहा हूँ कोई तो. जी हुजैफा. ना सर, लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल होती है, ऐसा इशू नहीं है। बाकी अच्छा था, इंफॉर्मेटिव था आपका लेक्चर। थैंक यू। That's good. I am happy. अब 4 बज गए हैं और मुझे आप बताएं कि अगर और कोई क्वेश्चन या कमेंट नहीं है तो वी विल क्लोज आउट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू टुमारो अगेन. Okay. Shall we close? चलिए. Thank you for joining.